آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل کا سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ، 8ویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں کریں گے شرکت۔ تلنگانہ میں بٹالین پولیس کانسٹیبلز کا احتجاج، چیف منسٹر کی رہائش گاہ کے پاس سیکیورٹی کا عملہ تبدیل۔ طویل عرصے بعد تلنگانہ میں تلگو دیشم پھر ایک بار سرگرم، 16 پارلیمانی حلقوں میں کنوینرز کا تقرر۔ حیدرآباد سری سلیم ہائی وے پر نظر آیا تیندوا، گاڑی سوار قائف۔ اور حیدرآباد میں موموز کھانے کے بعد خاتون کی موت، زائد از 20 افراد متاثر۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے اور 8ویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں حصہ لینے کے لیے مرکزی وزیر پیوش گوئل 29 اور 30 اکتوبر کو سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وزیر تجارت، صنعت اور معدنی وسائل کے وزیر سرمایہ کاری اور وزیر توانائی سمیت اہم سعودی وزراء کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے تاکہ توانائی کی منتقلی، ڈیجیٹل تبدیلی اور تجارتی سہولتوں میں تعاون پر مبنی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان 2023-24 میں 2 طرفہ تجارت $43 بلین رہی۔ ہندوستان سعودی عرب کے لیے دوسرا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، جبکہ سعودی عرب ہندوستان کا چوتھا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ ایلون مسک کے ایکس نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کا اکاؤنٹ معطل کر دیا ہے۔ اتوار 27 اکتوبر کو کھلنے والا اکاؤنٹ خامنہ ای کے 2 پیغامات پوسٹ کرنے کے بعد معطل کر دیا گیا۔ ایک چونکا دینے والے واقعے میں کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین کے محافظ کی 5 گاڑیاں ایک سڑک حادثے کا شکار ہو گئیں۔ پنارائی وجین کو لے جانے والی کار کو بھی نقصان پہنچا، تاہم کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ تصادم وامان پورم پارک جنکشن پر اس وقت ہوا جب قافلے میں شامل پائلٹ گاڑی نے خاتون کی طرف سے چلائے گئے اسکوٹر سے ٹکرانے سے بچنے کی کوشش کی۔ عینی شاہدین کے مطابق اسکوٹر MC روڈ سے اٹنگل جا رہا تھا۔ اسکوٹر سوار خاتون نے دائیں موڑنے کی کوشش کی۔ پائلٹ گاڑی نے تصادم سے بچنے کے لیے اچانک بریک لگا دیا۔ اس اچانک رکنے کی وجہ سے چیف منسٹر کے قافلے میں شامل دیگر کاریں پیچھے کی گاڑیوں سے ٹکرا گئیں۔ بارہمولہ لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ شیخ عبدالرشید، جنہیں عام طور پر انجینئر رشید کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے پیر کو تہاڑ جیل کے حکام کے سامنے اپنی عبوری ضمانت کی مدت ختم ہونے کے بعد خود سپردگی اختیار کی اور یہاں کی ایک عدالت نے دائرہ اختیار کے خدشات پر ان کی باقاعدہ ضمانت پر اپنا حکم محفوظ رکھا۔ عوامی اتحاد پارٹی کے قائد کو، جنہیں دہشت گردی کی فنڈنگ کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا، 10 ستمبر کو عبوری ضمانت دی گئی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج چندرجیت سنگھ نے راشد کو عبوری راحت دی تاکہ وہ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کی مہم چلا سکیں۔ ضلع سنگاریڈی میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ سنگاریڈی ضلع کے سداشیو پیٹ ٹاؤن میں اس وقت پیش آیا جب پٹنچیرو سے مہاراشٹر جانے والی لاری کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور یہ لاری سڑک کے کنارے مرمت کے لیے ٹھہرائی گئی تھی۔ اسی دوران ایک تیز رفتار لاری کے ڈرائیور نے اپنی گاڑی کا توازن کھو دیا اور یہ لاری ٹھہری ہوئی لاری سے ٹکرا گئی۔ دوسری لاری کا ڈرائیور حالت نیند میں تھا۔ اس حادثے میں 2 افراد ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ حادثے کے ساتھ ہی ایک شخص لاری کے کیبن میں پھنس گیا، جس کو مقامی افراد اور پولیس نے کافی جدوجہد کے بعد باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ سری سلیم حیدرآباد ہائی وے کے قریب
तेंदुआ नजर आया, जिससे सनसनी फैल गई। गाड़ी सवार इसको देखकर खौफजदा हो गए। इन अफराद ने अपने सेलफोन्स कैमरों में इस तेंदुए की वीडियोस कैद कर लीं। ये तेंदुआ गाड़ी के सामने से गुजरा और करीबी जंगल में चला गया। रोहित गोपट्टी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अमराबाद टाइगर रिजर्व ने इस वाक़े की तस्दीक की और कहा कि इस इलाके में ऐसे वाक़यात आम हैं। रियासत में जारी तेलंगाना बटालियन पुलिस के एहतजाज के पेश नज़र महकमे पुलिस ने चौकसी इख्तियार करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह के पास तैनात सिक्योरिटी अमले को तब्दील करने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक फिलवक्त चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर बटालियन पुलिस सिक्योरिटी अमले को चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी विंग के तौर पर तैनात किया गया है। इन्हें हटाकर आर्म रिजर्व पुलिस को तैनात किया गया है। पीर से सिक्योरिटी अमले की तब्दीली का अमल शुरू हुआ। वाज़ेह है कि बटालियन पुलिस ने एक पुलिस की पॉलिसी के नाम पर गुज़श्ता चंद दिनों से रियासत भर में धरने और एहतजाज मुनज़्ज़म किए हैं। इसी के पेश नज़र महकमे पुलिस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी को तब्दील कर दिया। 39 మంది సస్పెండ్ అయ్యారు. 10 మందిని ఈ రోజు ఉద్యోగాలకు వెళ్ళి తీసేశారు. 10 మందిని ఉద్యోగాలకు వెళ్ళి తీసేశారంటే మేము ఎంతో కష్టపడి అహర్నిశలు కష్టపడి చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి మేము ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నాం. మేము సార్ వాళ్ళకి అటాచ్ ఉంటాం. మా సిఏ సార్ వాళ్ళు, మా డిఎస్పీ సార్ వాళ్ళు, మా ఎస్ఐ సార్ వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు ఏ డ్యూటీ చేస్తే ఆ డ్యూటీ చేస్తాం. మేము చేస్తున్నాం. మేము డ్యూటీ డ్యూటీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, ఒక డ్రెస్ వేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నా చేయడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఎందుకంటే అది జనాలు మిమ్మల్ని ఫోకస్ చేస్తున్నారు. దీని మీద మీరు మేడం మాకు జరిగిన అన్యాయానికి మేము ఆల్రెడీ సార్ వారిని ఒకటి మేడం ఒకటే క్లాట్ ఇస్తున్నా. ఇంత జరుగుతున్నప్పుడు సీఎం సార్కి ఇదంతా తెలుసు, మా పైన ఆఫీసర్ అందరూ తెలుసు. అలాంటప్పుడు డీజీపీ సార్ అయినా సరే, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు, సార్ మీకు ఒక దండాలు పెడుతున్నా, నేను మిమ్మల్ని ఒకటే అడుగుతున్నా డిమాండ్. మీరే అన్నారు ఏక్ పోలీస్ చేస్తున్నారు. మీకు ఎలక్షన్ ముందు ఎన్నో సార్లు ఏక్ పోలీస్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు 100 సార్లు అన్నారు. నేను పోలీస్ కుటుంబం నుంచి వచ్చినా, నేను పోలీస్ బాగా తెలుసు, పోలీస్ ఆడపడుతున్నా నాతో ఇంట్లో వాళ్ళు, ఇవన్నీ వాళ్ళే చెప్పారు కదా సీఎం సార్. నేను దాని గురించి కూడా ఏమనలే, ఇవన్నీ చెప్పిన సార్ వాళ్ళే కాబట్టి సార్ వాళ్ళు మేము ఒకటే అడిగినాం, డిమాండ్ చేసినాం. సార్ మాకు మేము ఒక వ్యవస్థ ప్రభుత్వం దగ్గర కూర్చొని మీరు మాట్లాడుకునే విధానం మేమేమంటాం అంటే సార్ ఇప్పుడు మేము ఆల్రెడీ మేము చెప్పాము మేడం, మమ్మల్ని సీఎం సార్ దగ్గర తీసుకోమని చెప్పాము, డీజీపీ సార్ దగ్గర తీసుకోవాలి. ఇంతవరకు మేము ఎలా వెళ్తామండి? మేము ఎలా వెళ్ళాలి? అపాయింట్మెంట్ లేనప్పుడు మేడం మేము ధర్నా చేయలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిస్గైడ్ చేస్తారు. మా ఆడవాళ్ళు, మా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ధర్నా చేస్తారు. మా ఆడవాళ్ళు ఇప్పుడు మేడం నా భార్య రోడ్డు మీదకి వచ్చిందంటే నేను రోడ్డు మీద రావాలా, లేకపోతే నా భార్య రోజు పెట్టి వెళ్ళిపోవాలా? రావాలి కదా, భార్య కోసమే కదా. ఇంకోటి ఇప్పుడు మీరు మైక్ పట్టుకొని ఈ జాబ్ చేస్తున్నా, అన్నలు కెమెరా పట్టుకొని ఆ జాబ్ చేస్తున్నా. జాబ్ ఎందుకు చేస్తారు? మీ కుటుంబం, మీ అమ్మ నాన్న కోసం కావచ్చు, మీ భార్య భర్తల కోసం కావచ్చు, మీ పిల్లల కోసం కావచ్చు. నేను కూడా మా భార్య రోడ్డు మీదకి వచ్చిందంటే వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుని మేము బయటికి రావాలొద్దా? మేడం మమ్మల్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు, డీజీపీ జితేందర్ రెడ్డి సార్ గారు మమ్మల్ని ఒకసారి పిలవాలి. పిలిచి మమ్మల్ని చర్చలు బెడాల నుంచి ఇద్దరు పిలిచి అసలు మీ బాధలు ఏమున్నాయి, ఎందుకు మీరు అసలు మేము ఏడా శాంతియుతంగానే ఏడా మిస్యూజ్ చేయలే, ఒక అద్దాల వల్ల కొట్టలే, ఎవరిని కొట్టలే, ఎవరిని తిట్టలే, అసలు కక్షపూర్తిగా మాట్లాడాలి, విద్వేషంగా రాజకీయాలు రెచ్చగొట్టలే. మా ఆయనకి ఎలాంటి రాజకీయ శక్తులు కూడా లేవు. एक तवील अरसे बाद तेलंगाना में तेलुगु देशम की सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है। तेलुगु देशम के कौमी सदर और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर रियासत के 16 पार्लिमानी हलकों के लिए पार्टी के कन्वेनर्स का तकर्रुर किया गया। इस सिलसिले में तेलुगु देशम के पोलिट ब्यूरो बी नरसिम्लू ने एक बयान जारी करते हुए कन्वेनर्स का ऐलान किया, जबकि हैदराबाद पार्लिमानी हलके के कन्वेनर का इंतखाब नहीं हो सका। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले के अंदरून 4 साल तकमील की तवक्को कर रही है। ज़ायदस 24,000 करोड़ के तखमीने लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 52% फंड्स का कर्ज हासिल करने का फैसला किया गया है। हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए मेट्रो प्रोजेक्ट का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। हुकूमत को उम्मीद है कि मरकज़ी हुकूमत से मंजूरी मिलते ही ये काम शुरू हो जाएगा। 76.4 किलोमीटर मेट्रो की तामीर के लिए DPR पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। पहले मरहले में 3 कॉरिडोर थे, दूसरे मरहले में 5 नए कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने रियासत तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल और फ़िरका परस्त अनासिर की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया है। फोरम के ज़िम्मेदारान ने अपने एक मुश्तरका बयान में ज़िले कोमरम भीम आसिफाबाद में गुज़श्ता चंद दिनों से फ़िरका परस्त अनासिर की सरगर्मियों पर हुकूमत और इंतज़ामिया की सर्दमहरी पर सवाल उठाया। ज़िले कागज़ नगर में एक नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनाया गया।
इससे कबल इसी ज़िले के जैनूर में फ़िरका परस्तों ने मुनज़्ज़म तौर पर बड़े पैमाने पर तशद्दुद बरपा किया था। जैनूर में आज भी इस्तिराब पाया जाता है। तशद्दुद के मुतासिरीन को अब भी दोबारा खड़ा नहीं किया गया और ना ही इन्हें कोई मुआवजा दिया गया है। मुकम्मल पा चुके हैं। अब हमारे तेलंगाना में 13 मई को जो इलेक्शंस हो रहे हैं उस संबंध में हमको अपना स्टैंड क्लियर करना है कि हमको किस जानिब जाना है और हमारी तारीखी जो हमारा ऐलान होता है वो किसके हक में होना चाहिए। रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले किए गए। इस खसूस में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी किए। इन अहकामात के मुताबिक हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला में 47 डिप्टी कलेक्टर्स और 23 स्पेशल डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले किए हैं। रियासत भर में 15 अजला में एडिशनल कलेक्टर्स और 4 अजला में डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स DROs के भी तबादले किए गए। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पोन्नम प्रभाकर ने कहा है कि सेटविन की आमदनी में इजाफे के इक़दाम किए जाएंगे। सेटविन इदारे की जानिब से नौजवानों को दी जाने वाली तरबियत, ट्रांसपोर्ट और ट्रेडिंग के जरिए हासिल होने वाली आमदनी में मजीद इजाफे की कोशिश की जाएगी। उन्होंने आज सेटविन के सदर दफ्तर का मुआयना करते हुए सेटविन के चेयरमैन गिरिधर रेड्डी के साथ मिलकर असरी सहूलियात से तामीर करदा इदारे के दफ्तर का इफ्तिताह किया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने तेलंगाना बटालियन पुलिस कांस्टेबल्स के जारी एहतजाज और धरना के पेश नज़र सिक्योरिटी के अमले को कई अहम हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के अतराफ 2 किलोमीटर तक 144 सेक्शन नाफिजुल अमल है। उन्होंने कहा कि अमले की सरगर्मियों और उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी नज़र रखी गई है। पुलिस के आला अहदेदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ पैगामात फैलाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप से निकल जाने की सिक्योरिटी अमले को हिदायत दी गई है। उन्होंने सिक्योरिटी अमले को इस बात की भी हिदायत दी कि वो रियासती हुकूमत या महकमे पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर गश्त करने वाले पोस्ट पर शेयर या लाइक ना करें। हैदराबाद में मोमोज खाने की वजह से एक खातून की मौत हो गई। खातून की शनाख्त 31 साला रेशमा बेगम की हैसियत से हुई है, जो शहर के नंदीनगर सिंगाड़ी कुंटा की रहने वाली बताई गई है। इस वाक़े के बाद GHMC ने फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए मोमोज तैयार करने वाली कंपनी को सील कर दिया है। बंजारा हिल्स के नंदीनगर में रेशमा बेगम मोमोज खाने के बाद बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इनके अलावा मज़ीद 20 अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं। उन्हें भी मोमोज खाने के बाद तिब्बी मसाइल का सामना है। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान पता लगाया कि मोमोज चिंतल बस्ती में तैयार किए गए थे। GHMC के हुक्काम ने मुतासरा मोमोज के नमूने जांच करके लेबॉरेटरी भेज दिए हैं ताकि मज़ीद तहकीकात की जा सके। स्वाति क्लिनिक में है और अदनान हॉस्पिटल में भी है। అద్నాన్ అజీజ్ హాస్పిటల్ यहाँ पे రోడ్ నెంబర్ డాక్టర్లు ఏం చెప్పారు ఫుడ్ పాయిజన్ ఇది మొత్తం అందరు ఇదే సార్ ఫుడ్ పాయిజన్ అంటే దీనికోసం అన్నారు ఇది మోమోస్ తిన్న వాళ్ళకి అయినారు అందరికి అన్నారు అంటే ఏమేమి మీకు అసలు అది మోషన్స్ అవుతుంది వామిటింగ్స్ అవుతుంది సార్ అసలు బాడీలో పేషెన్సీ లేకుండా అయిపోతుంది సార్ అందరికి టోటల్ గా హాస్పిటలైజ్ అయిపోతున్నారు సార్ అందరు ఒక ఆమె చనిపోయింది అన్నారు ఎలా చనిపోయింది అది కూడా ఆమెకు కూడా పెయిన్ అయ్యి దాని వల్ల చనిపోయింది సార్ అది పెయిన్ అది చేయక సపోర్ట్ బాడీ సపోర్ట్ చేయక ఆమె చనిపోయింది సార్ అది నిమ్స్ లో చనిపోయింది సార్ ఆమె అది నిన్న అయింది సార్ తిన్న తర్వాత బాడీ సపోర్ట్ చేయక చనిపోయింది అది అసలు దాని వల్ల అయిందని ఆమెకి తెలియకనే అయింది సార్ ఇది कमिश्नर हैडरा AV रंगनाथ ने आबिड्स में पटाखे की दुकान और आसपास के इलाकों का मुआयना किया, जहां इतवार की रात आग लग गई थी। कमिश्नर ने हिफाजत की ज़रूरत पर जोर दिया। दुकान के मालिकान को मशवरा दिया गया है कि वो अपने स्टोर सिर्फ खुले इलाकों में कायम करें।
मुकामी हुक्काम ने इंकशाफ किया कि मुतासरा दुकान के पास मुनासिब इजाज़तनामे नहीं थे। उसने सिर्फ खुले इलाके में दिवाली की दुकान के लिए आर्जी मंजूरी हासिल की थी और ज़रूरी इजाज़तनामों के बगैर फ़रोख्त की जा रही थी। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटी रामाराव के बहनोई राजपकाला ने पीर 28 अक्टूबर को तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया और मोकिला पुलिस की जानिब से इन्हें नोटिस जारी करने के बाद गिरफ्तारी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की दरख्वास्त दायर की। अपनी दरख्वास्त में उन्होंने दावा किया कि पुलिस उन्हें बगैर किसी जुआस के गिरफ्तार करने का मंसूबा रखती है और गिरफ्तारी को रोकने के हुक्म की दरख्वास्त की गई। इस दौरान ज़राए से मालूम हुआ है कि अदालत की जानिब से उन्हें राहत दी गई और पुलिस से तहकीकात में ताउन का मशवरा दिया गया है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा, 8वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में करेंगे शिरकत। तेलंगाना में बटालियन पुलिस कांस्टेबल्स का एहतजाज, चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह के पास सिक्योरिटी का अमला तब्दील। तवील अरसे बाद तेलंगाना में तेलुगु देशम फिर एक बार सरगर्म, 16 पार्लिमानी हलकों में कन्वेनर्स का तकर्रुर। हैदराबाद श्रीसलम हाईवे पर नजर आया तेंदुआ, गाड़ी सवार कायफ। और हैदराबाद में मोमोज खाने के बाद खातून की मौत, ज़ायद अज़ 20 अफराद मुतासिर। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।